یہ سب جہاں والے میری کمر پہ لکھنا جس کو بھرا زمانہ ٹوکتا پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے شہر شہر ریلیاں اور مظاہرے، عوام کی بڑی تعداد کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ اسلام آباد میں بھی وزارت خارجہ کے باہر کشمیریوں کے حق میں مظاہرہ کیا گیا۔ پاکستان کا بھارتی وزیراعظم کو سعودی عرب جانے کے لیے اپنی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ۔ بھارتی ہائی کمیشن کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا۔ فیصلہ مقبوضہ کشمیر کے سیاہ دن کی مناسبت سے کیا گیا۔ وزیراعظم کا ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر قوم کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ عمران خان کا ویڈیو پیغام ریکارڈ کر کے اسلامی ممالک سمیت اقوام متحدہ نے پاکستان کے موقف کی تائید کی۔ علی امین گنڈا پور کا مظفر آباد میں یوم سیاہ کی مرکزی تقریب سے خطاب۔ وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر بولے، بھارت نے زمینی تنازع کو اپنا بیانیہ بنایا ہوا ہے۔ دنیا سمجھے کہ یہ زمینی تنازع نہیں، حق کے خود ارادیت کا مسئلہ ہے۔ نون لیگ کی جانب سے کشمیر کے یوم سیاہ کی تقریب۔ شہباز شریف کی کشمیر سے متعلق حکومتی پالیسیز پر کڑی تنقید۔ بولے نواز شریف ہی کریں گے، موجودہ حکمران کچھ نہیں کر سکتے۔ شہباز شریف کی عوام سے نواز شریف کی صحت کے لیے دعا کی اپیل۔ جمعیت علماء اسلام کا ملک گیر آزادی بعد سہراب گڑھ کراچی سے مرکزی قافلہ روانہ ہو گیا۔ فضل الرحمان کے ساتھ دیگر اپوزیشن پارٹی کے ارکان بھی موجود۔ نون لیگ پیپلز پارٹی ANP کے وفود پہنچے۔ قافلہ اندرون سندھ جائے گا، دیگر شہروں سے قافلے شامل ہوتے جائیں گے۔ آزادی مارچ 31 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچے گا۔ سٹیج پشاور موڑ پر سجے گا۔ ہماری جدوجہد کشمیر کی آزادی تک جاری رہے گی۔ فضل الرحمان کا آزادی مارچ سے خطاب۔ مزید بولے کہ عوام کی یکجہتی سے ہندوستان کی ظالم حکومت کو پیغام مل رہا ہے۔ کشمیر کے مسئلے پر سب پاکستانی ایک پیج پر ہیں۔ JUI رہنما مفتی کفایت اللہ اسلام آباد سے گرفتار، ہری پور جیل منتقل کر دیا گیا۔ اشتعال انگیز تقریر کرنے کے کیس میں مانزہرہ پولیس نے گرفتاری ڈالی۔ مولانا عبدالغفور حیدری کا مفتی کفایت اللہ کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ بولے کہ ایک طرف معاہدہ اور دوسری جانب گرفتاریاں ہو رہی ہیں، حکومت ایسی حرکتوں سے اشتعال بڑھا رہی ہے۔ شریف فیملی کا نواز شریف کا علاج سرکاری میڈیکل بورڈ سے ہی کروانے کا فیصلہ۔ سروسز اسپتال سے کسی اور اسپتال میں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ نواز شریف کی طبیعت بدستور ناساز، پلیٹلیٹس میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ انجائنا کی تکلیف کا بھی سامنا۔ بیٹی مریم نواز بھی اسپتال میں موجود۔ نیب سکھر کی زیر حراست خورشید شاہ کی طبیعت بھی ناساز۔ NICVED اسپتال داخل کر لیا گیا۔ عدالت حکم پر خورشید شاہ کا چیک اپ کرایا گیا۔ بلڈ پریشر ہائی ہونے کے باعث ایڈمٹ کیا گیا۔ رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی۔ رہنما پیپلز پارٹی پر آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں انکوائری جاری ہے۔ بحیرہ عرب میں ٹراپیکل سائیکلون کیار شدید طوفان میں تبدیل۔ ماہرین نے بحیرہ عرب کا طاقتور ترین طوفان قرار دے دیا۔ پاکستان کی ساحلی پٹی کو براہ راست خطرہ نہیں ہے۔ ماہی گیروں کو گہرے سمندر میں جانے سے روک دیا گیا۔ کراچی سمیت زیریں سندھ اور مکران ڈویژن میں بارشوں کا امکان ہے۔
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बिरादरी आज अपना मजहबी त्यौहार दिवाली मना रही है। हिंदू बिरादरी पटाखे फोड़ती है और अपनी रसूम के मुताबिक इबादत करती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिंदू कम्युनिटी को दिवाली की मुबारकबाद। ट्विटर पैगाम में कहा, हमारे तमाम हिंदू शहरियों को दिवाली की खुशियाँ मुबारक। दाइश के सरबराह अबू बकर अल बगदादी अमरीकी हमले में हलाक। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू बकर अल बगदादी को शाम के इलाके इदलिब में खुफिया ऑपरेशन के दौरान हलाक किया गया। ऑपरेशन की मंजूरी एक हफ्ते कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने दी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे दानिश हुसैन। आगाज में बात करेंगे यौम स्याह की। इस्लामाबाद की सड़कों पर स्याह परचम और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए बैनर्स भी आवेजा किए गए हैं। आज 72 रोज बीत चुके हैं, 72 साल बीत चुके हैं इस गासिबाना कब्जे को, और मकबूजा कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियां मुनाकिद की गई और भारत के खिलाफ मुजाहिरे किए जा रहे हैं। रैली के शुरका की मोदी के खिलाफ नारेबाजी और सरकारी परचमों पर कौमी परचम भी सरनिगू रहा। सरकारी इमारतों में इस्लामाबाद की सड़कों पर स्याह परचम और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए बैनर्स भी आवेजा किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर की आज़ादी के लिए पौधा लगा दिया है। वज़ीर आज़म आज मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर कौम को एतमाद में मिलेंगे और इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का दिल कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कता है। पूरा पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की शाना बशाना है और कश्मीरियों की सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर को हर सतह पर हम उठाएंगे और आज इमरान खान मुतवक्के तौर पर खिताब भी करेंगे कौम से और एतमाद में लेंगे। आज के इस दिन पर पाकिस्तानी अवाम का दिल कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कता है, इमरान खान ने यह भी कहा और एक पौधा भी लगाया। कौन है? खबर आपको दें कि 27 अक्टूबर भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम स्याह। पाकिस्तान का अहम फैसला इस दिन सामने आया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म को फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त देने से यकसर इनकार कर दिया है। 27 अक्टूबर भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम स्याह। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फिर फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। मोदी को अब फ़िज़ाई हदूद के लिए लंबा चक्कर काटकर सऊदी अरब जाना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारतीय हाई कमीशन को फैसले से आगाह कर दिया है। इस्लामाबाद से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान की भारत को एक कोरना। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लंबा चक्कर काटकर सऊदी अरब जाना पड़ेगा। भारत ने नरेंद्र मोदी के दौरे सऊदी अरब के लिए तैयारा पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से गुजारने की इजाज़त मांगी। पाकिस्तान ने करारा जवाब दिया और ना कर दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, इजाज़त ना देने का फैसला यौम स्याह के तनाजुर में किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन हाई कमीशन को फैसले से बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। इससे पहले भी पाकिस्तान ने कई मरतबा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तैयारे को पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी थी। कश्मीर के मज़लूम अवाम से इजहार यकजहती के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। अपने खिताब में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ का कहना था कि भारत की फस्ताई सोच कश्मीरियों के जज्बों को शिकस्त नहीं दे सकती। भारतीय आर्मी चीफ गीदड़ भभकियां ना दे, अगर जवाब दिया तो हमें जिंदगी भर याद रखेंगे। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को सुलह का पैगाम भी दिया और तनकीद भी कर दी। लाहौर से सुहेब शाहिद की रिपोर्ट देखिए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नून लीग की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना था कि फ़लस्तीन और कश्मीर, एक तरफ फ़लस्तीन और दूसरी तरफ कश्मीर, जुल्म और ज्यादती दिन रात हो रही है। जुल्म दिन रात ढाया जा रहा है। फस्ताई हुकूमतें वहाँ पर दिन रात मासूम मुसलमानों का खून बहा रहे हैं। लेकिन आज वो आज़ाद मगरबी दुनिया वो आज सोई हुई है, कोई परवाह नहीं उनको। शहबाज शरीफ ने भारतीय आर्मी चीफ के बयानात के जवाब में यौम यकजहती कश्मीर की तकरीब में शहबाज शरीफ इमरान खान पर तनकीद करना भी ना भूले। सऊदी अरब जो हमारा एक बहुत प्यारा हमारा
برادر ملک ہے, ایران ہمارا برادر ملک ہے. ان کے درمیان سالچی کے لیے جو پاکستان نے ایفرٹ کی اس کی پوری دنیا اس کی ستائش کرتی ہے, مگر باہر صلح کروائیں اور آپ اندر لڑائی کروائیں, اس طرح آپ کشمیر لینا چاہتے ہیں. شہباز شریف نے اپنے بڑے بھائی نواز شریف کی صحت اور مریم نواز کی ضمانت کی درخواست منظور ہونے کے لیے کارکنوں سے دعا کی اپیل کی. تقریب کے اختتام پر کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے فیروز پور روڈ تک ریلی بھی نکالی گئی. کیمرہ مین عمران بٹ کے ساتھ سہیب شاہد, 92 نیوز, لاہور. یوم سیاہ کے موقع پر فیصل آباد میں بھی مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں, جن میں شہریوں کے علاوہ خواتین اور بچوں نے بھی شرکت کی. اور غاصبانہ بھارتی تسلط کے خلاف نعرے لگائے گئے. سرگودا, جھنگ اور چنوٹ میں بھی ریلیاں نکالی گئیں. شہناز محمود کی رپورٹ میں دیکھیے. کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. کشمیر پر غاصبانہ بھارتی تسلط نامنظور. فیصل آباد کے شہری کشمیری بہن بھائیوں کے حق میں یکا آواز ہوئے اور شہر بھر میں ریلیاں نکالی. ضلع کونسل چوک سے شروع ہونے والی ریلی کی قیادت کمشنر فیصل آباد محمود جاوید بھٹی نے کی. ریلی میں شریک اراکین اسمبلی, خواتین اور بچوں نے نعرے بازی کی اور کشمیریوں کو اپنی حمایت کا بھرپور یقین دلایا. مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے, اور جب تک وہ مسئلہ اس سے حل نہیں کیا جاتا اور ان کو آزادی نہیں ملتی, پوری پاکستانی قوم متحد ہو کر ان کے ساتھ ہے. ہمیں امید ہے کہ جلد کشمیر آزاد ہوگا اور یہ آزادی پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے اور کشمیر کے لیے پورے خطے میں اور پوری دنیا میں امن کا پیغام ہوگا. یوم سیاہ کے موقع پر سرگودا میں بھی ریلیاں نکالی گئی اور شرکا نے بھارتی تسلط کے خلاف آواز بلند کی. ٹوبا ٹیک سنگھ, جھنگ, چنیوٹ, بھیرا, بھلوال اور پیر محل سمیت ڈویژن کے مختلف شہروں میں بھی شہری کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف سراپا احتجاج رہے. کیمرہ ٹیم و ساتھی رپورٹرز کے ساتھ شہناز محمود, 92 نیوز, فیصل آباد. جنت نظیر وادی کشمیر پر بھارتی تسلط کے خلاف آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے, اور مقبوضہ کشمیر میں 1947 سے اب تک ہونے والے ظلم پر دیکھیے ایک جامع رپورٹ. 27 اکتوبر تاریخ کشمیر میں ایک سیاہ دن. اس دن بھارت نے مسلم اکثریتی ریاست جموں و کشمیر, جو تقسیم ہند کے فارمولے کے تحت پاکستان کا فطری حصہ بنتی تھی, پر فوج کشی کر کے ناجائز اور غیر قانونی قبضہ کر لیا. کشمیری عوام دنیا کے کسی بھی خطے میں بستے ہوں, اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منا کر دنیا کی توجہ بھارت کے ناجائز قبضے اور مقبوضہ وادی میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی طرف دلاتی. بھارت کی موجودہ انتہا پسند حکومت نے کشمیریوں پر ظلم کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. 5 اگست 2019 کو مودی سرکار نے کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والی بھارتی آئین کی شکوں کو ختم کر کے پوری ریاست میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروسز بند کر دی گئیں اور آزاد سرائے ابلاغ کے نمائندگان کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی, تاکہ بھارتی جویات کی شدید قلت ہو چکی ہے, جس سے ایک بڑا انسانی سانحہ جنم لے رہا ہے. عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی کہ وہ اس دیرینہ مسئلے کے پرامن اور دائمی حل کے لیے فوری اقدامات کرے. مزید خبریں ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. لندن میں ڈاؤننگ اسٹریٹ سے ٹریفالگر اسکوائر تک کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مارچ کیا جا رہا ہے, جس میں شرکت کے لیے برطانیہ بھر سے قافلے یہاں پہنچ چکے ہیں. اسی مارچ کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان سے. غلام حسین اوان, بتائے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, برطانیہ بھر سے جو ہے وہ قافلے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ لوگ بسوں پر اور ٹرین کے اوپر جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں, کیونکہ 27 اکتوبر جو ہے وہ ہر سال کشمیریوں سے یکجہتی کا دن منایا جاتا ہے, یوم سیاہ منایا جاتا ہے, چونکہ جس طرح بھارت نے جو ہے وہ غاصبانہ قبضہ کیا تھا 70 سال پہلے, اس کی یاد میں پوری دنیا بھر میں کشمیری جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں. آج جو احتجاج ہے وہ پہلے یہ پروگرام تھا کہ وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے شروع ہو کر ٹریفالگر اسٹریٹ کے ہوتا ہوا جو بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا. تاہم میئر آف لنڈن کی جانب سے جب ہوم سیکرٹری کو خط لکھا گیا کہ اس کو جو ہے وہ انڈین ہائی کمیشن کے باہر جانے سے روکا جائے, تو اس کے بعد سے جو ہے اس کا روٹ تبدیل کر دیا گیا ہے, اور اب یہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے شروع ہو کر ٹریفالگر
सिल्वर स्केल पर इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसा होगा जिससे कश्मीरी कम्युनिटी जो है उसके लीडरान MP जो है ये खिताब करेंगे। और ये आपको बताता चलूँ कि इस तरह के मुजाहरे दुनिया भर में हो रहे हैं, लेकिन ये जो मुजाहरा है बहुत बड़ा मुजाहरा है, क्योंकि पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा जो कश्मीरी हैं वो बरतानिया के अंदर रहायश पजीर है, इसलिए इस मुजाहरे को बहुत अहमियत दी जा रही है। जी। लंदन में होने वाले मार्च में शिरकत के लिए बरतानिया भर से काफ़िले डाउनिंग स्ट्रीट पहुंच रहे हैं। बर्मिंघम से आने वाले अफराद का कहना है कि वो मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए मार्च में शिरकत कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी भी इस काफ़िले के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद अहवाल जानेंगे। जी बताएगा आबिद काज़मी इस मुतालिक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बर्मिंघम से लंदन की तरफ रवाना हूँ और आपको ये बताता चलूँ कि मैं जिस कोच में मौजूद हूँ ये कुल जमाती राब्ता कश्मीर कमेटी की तरफ से बुक हुई है कोच, और यहाँ मिडलैंड से तकरीबन 86 कोचेस लंदन की तरफ रवाना हो चुकी हैं और बेशुमार कश्मीरी बूढ़े जवान बच्चे सारे प्रोटेस्ट के लिए लंदन के लिए रवाना हैं। और जैसा कि आप फुटेज में देख रहे होंगे कि लोगों के क्या जज्बात हैं और किस जज्बे के तहत वो यहाँ से जा रहे हैं, और इस कोच के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके भी यही जज्बात हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर काफ़ी अरसे से जो जुल्म बर्बरियत का माहौल गर्म है उसके खात्मे तक हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। आज़ाद कश्मीर से लोग, पाकिस्तान से लोग बात कर रहे हैं, इससे कम से कम हमारी आवाज़ किसी फोरम पे आके कोई बोलता है हमारे लिए, इससे हमें काफ़ी हौसला मिलता है। मैं इसलिए यहाँ इनके साथ हूँ क्योंकि हमको पता है कि ओनली आज़ाद कश्मीर से और पाकिस्तान से हमारे जो बात कर रहे हैं वहाँ पर जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, तो मैं भी अपने फैमिली से बात नहीं कर सका अबाउट जब स्टार्ट हुआ था 4 अगस्त से जब स्टार्ट हुआ था, तो कम से कम 15 to 20 डेज़ तो मैं बात ही नहीं कर सका, पता नहीं चला कुछ। उसके बाद में थोड़ा सा लैंडलाइन पे बात हुई, वो भी हम 15 डेज़ या 20 डेज़ की बात कर सकते हैं। और इतना तो है कि वहाँ पर एकदम कंप्लीट लॉकडाउन है, लोगों को बाहर नहीं जाने देते हैं। इस बार प्रोटेस्ट का जो तरीका अख्तियार किया गया है वो कतबों की सूरत में, नारों की सूरत में और डिजिटल वैन की सूरत में कश्मीर के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत का माहौल गुज़श्ता 86 दिनों से जारी है, कर्फ्यू वहाँ मौजूद है, उस दौरान क्या हुआ, जो रिपोर्ट्स यहाँ इंटरनेशनल मीडिया में आई उन तमाम रिपोर्ट्स की वीडियो और फोटोज़ फुटेजेस सारी चलाई जाएंगी डिजिटल वैन पर, और दुनिया को बताया जाएगा कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। इंडियन जो कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ी जमहूरियत है, उस जमहूरियत को बेनकाब करने का ये तैयार कर रखा है कश्मीरियों ने, और जब तक कश्मीर को आज़ादी नहीं मिलती उस वक्त तक ये प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी रहेगा। जी। वॉल्सन में मुकीम कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से कश्मीर फ्रीडम मुजाहरे का एहतमाम किया गया। शुरका ने भारतीय मज़ालिम की मजम्मत करते हुए कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार किया। इरफान अहमद फराज की रिपोर्ट देखिए। वॉल्सल में कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से कश्मीर फ्रीडम मुजाहरे का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत मोहम्मद सज्जाद और मास्टर अरशद परवेज़ ने की। मुजाहरे में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वालों की कसीर तादाद शरीक हुई। शदीद बारिश के बावजूद मुजाहरे में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए MP वैलीवास, सीनियर काउंसलर आफ्ताब नवाज, काउंसलर खिजर कादरी और दीगर ने कहा, मसला कश्मीर बरतानिया का पैदा करदा है, इसे फौरी तौर पर हल किया जाना चाहिए। been touched on in any depth thus far. First of all, this problem of course goes back to 1947 and it is one that the British government holds, I'm afraid, clear responsibility for. Secondly, I think it's important when we look for where our allies are in this, that we don't talk about the international community and so on, and I'm glad not to have heard that today, because really those are weasel words for the world's establishment and rulers. I was privileged to be in the House of Commons when President Massoud from Azad Kashmir came and told us how important it is that we need to stop the aggravated rhetoric between the two nuclear powers, and that's why our presence here today and our messages that we send out to our family and friends from Walsall to Kashmir is so important. Jeremy Corbyn, the leader of the Labour Party, Emily Thornberry, the Shadow Foreign Secretary, and Liz McInnes raise Kashmir at every opportunity. Jeremy has spoken to
both the Prime Ministers, and he's made it clear that human rights breaches must not be tolerated at all. Kashmir has been under Indian siege since 5th August 2019. Narendra Modi has adopted the policies of dark ages when King used to put cities under siege by cutting off their supplies for to make them to bow down in front of their terms and condition. Same like Narendra Modi wants the people of Kashmir to bow down in front of his Hindutva ideology of fascist BJP regime and give up their demand for right to self-determination. ये एक नए तर्ज का मोदी सरकार ने, हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने, इंडियन आर्मी ने, इंडियन एजेंसीज ने, हम जो पिछले 32 साल से 72 साल से हिंदुस्तान के साथ नबरद आजमा है, मैं आपको उनकी वसादत से कहना चाहूँ। हिंदुस्तानी हुक्मरान, हिंदुस्तान की फौज अमन हार चुकी है, वो वहाँ के माओं, बहनों, बूढ़ों और बच्चों के सामने जिच हो गया है। ये वजह है कि इस दफ़ा उसने इंतकाम लेने की ये तरकीब बनाई। We are witnessing more and more activities carried out against minorities than ever before. If we look what's happening in Kashmir today, same thing happened in Punjab in 1984. Media blackout, army controlled, curfew state, no foreign press in the region. This does not happen in the free world. Lack of communication, but we are the voice of Kashmir. We are the voice of Kashmir. People in Warsaw, people in the UK, they cannot shut us up. Can they shut us up? Can they keep us quiet? 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में शुरका ने कहा मकबूजा कश्मीर में बच्चे, मर्द, ख़वातीन और बूढ़े कैदोबंद की सहूबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। मीडिया को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं। खुराक, अद्वियात, फ़ोन सर्विस समेत तमाम सहूलियात पर पाबंदी है। आलमी बरादरी कर्फ्यू हटाने और मसला कश्मीर हल कराने में अपना किरदार अदा करे। with everyone to make sure that Kashmiris can get the right to self-determination. और वर्ष में ये कश्मीरियों का पहला प्रोग्राम था। बारिश के बावजूद काफ़ी तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की और इंडियन गवर्नमेंट के इस इक़दाम की भरपूर मजम्मत की और मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम कश्मीरी भाइयों की तरफ से जो वर्सल में मुकीम हैं, इंडियन के इस इक़दाम, इंडियन गवर्नमेंट के इस इक़दाम की भरपूर मजम्मत करता हूँ। जो इंडियन की हुकूमत है, मोदी की ये फासिस्ट हुकूमत है, उनको बताना चाहिए ये अनएक्सेप्टेबल है, ये इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। Many people have been fighting for freedom for over 60, 70, 80 years. They've been following the UN nation and been asking them to give them freedom. But if you look at it, it's been over 70, 80 years. Nothing has happened. पहले तो मैं 92 चैनल वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जो यहाँ कश्मीर के हवाले से प्रोग्राम होते हैं उनको फुल कवरेज देते हैं और बिलखुसूस आज जो वर्सल में ये इख्तिताम किया गया, इस प्रोग्राम बनाया गया, इस पर तमाम कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में कश्मीरी आवाम की आज़ादी के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की गई। इरफान अहमद फराज, 92 न्यूज़, वालसल। स्पेन के शहर बार्सिलोना में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा किया गया। शुरका ने भारतीय मज़ालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट देखिए। स्पेन के शहर बार्सिलोना में रामला रवाल पर EU पाक फ्रेंडशिप के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी मुजाहरे का इनाकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी शरीक हुई। मुकर्रर ने खिताब करते हुए कहा, मकबूजा कश्मीर में भारत कश्मीरियों के खून की होली खेल रहा है और उनकी नस्ल कुशी करने में मसरूफ है। गुज़श्ता 2.5 माह से जारी बदतरीन कर्फ्यू ने भारत का नाम नहाद सेकुलर चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। शुरका का मजीद कहना था कि भारत की ये भूल है कि वो कश्मीरियों को हमेशा के लिए यरगमाल बना कर रख सकता है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी आजाद फिजा में सांस लेंगे। शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। फ्रांसीसी दारहुकूमत पेरिस के तारीखी मकाम आईफल टावर के सामने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शुरका ने कश्मीर की आज़ादी के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी की। तफसीलात राजा हबीब की रिपोर्ट में देखिए।
फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के तारीखी मकाम एफल टावर के सामने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम और इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शुरकान कश्मीरी और पाकिस्तानी परचम और बैनर्स उठा रखे थे, जबकि इस मौके पर कश्मीर की आज़ादी के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरीन ने कहा 3 माह होने वाले हैं कश्मीर में भारत ने कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। मोबाइल इंटरनेट बंद करके कश्मीरियों का दुनिया से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया है। शुरका ने कहा कश्मीरी सियासी और समाजी रहनुमाओं की बड़ी तादाद जेलों में है। अक़वाम आलम को चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में मसला कश्मीर का पुरअमन हल यकीनी बनाए। राजा हबीब, 92 न्यूज़, पेरिस। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। JUI फे का आज़ादी मार्च सोहराब गोड से रवाना हो गया है। मौलाना फजल रहमान की क़यादत में आज़ादी मार्च हैदराबाद में पड़ाव करेगा। आज़ादी मार्च के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि सोहराब गोड में जमाते उलमा इस्लाम फे के कारकुनान के साथ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी थी और इस कारवां में शरीक है। 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद तक ये मार्च पहुँचेगा। अगला पड़ाव इस मार्च का हैदराबाद में होगा। इसी पर बात करेंगे, मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद सलमान, बताइएगा आज़ादी मार्च का काफिला कहाँ तक पहुँचा है और अगला पड़ाव कहाँ पर होगा? जी बिल्कुल, आज़ादी मार्च के जो है चंद दिनों से बहुत ज़्यादा चर्चित है। ये मार्च जो है वो अब शुरू हुआ। उससे कुछ देर पहले सोहराब गोड से पहले कायदीन ने खिताब किया, मौलाना फजल रहमान ने खिताब किया और उसके बाद ये काफिला जो है वो बड़ी तेजी से रवा दवा हुआ। 12 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन तकरीबन 2:30 बजे जो है ये काफिला रवाना हुआ सोहराब और इस वक्त DHA सिटी जो है ये काफिला क्रॉस कर चुका है और कुछ देर में नूरियाबाद के करीब ये पहुंचेगा। और इस तरह जैसे नजर आ रहा है कि जितनी तेजी से काफिला जा रहा है तो कोई पड़ाव ऐसा बीच में नजर नहीं आ रहा, लेकिन कारकुनान जो है वो अपने कायदीन का इस्तकबाल कर रहे हैं, फूल निछावर कर रहे हैं, पानी वगैरह दे रहे हैं। तो उसके लिए कुछ मिनटों के लिए रोका जाता है और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून और ANC के कारकुनान भी इस काफिले में शामिल हैं और कारकुनों का जो जोशो खरोश है उस बात का अंदाजा इस तरह से लगाया जा सकता है कि तेज ट्रैफिक में भी मोटरसाइकिलों पे भी कारकुनान साथ के साथ हैं। और जब ये काफिला जो है वो टोल प्लाजा से गुजरा है तो थोड़ा देखने में आया कि ट्रैफिक जैम की सूरत हाल हुई, क्योंकि जगह जो है वो कुछ तंग हुई थी। इसके बाद जो है दोबारा ये सुपर हाईवे के इस वक्त भी रवा दवा है। मौलाना फजल रहमान को जो है CVIP प्रोटोकॉल सिक्योरिटी दी गई है। पुलिस की तकरीबन जो है वो 10 से ज़ायद मोबाइलें जो है वो मौलाना फजल रहमान की गाड़ी के साथ हैं और ये काफिला रवा दवा है। जी सही, काफिला जो अपनी मंजिल के जानिब रवा दवा है। अपडेट कर रहे थे सलमान, आपका शुक्रिया। आज़ादी मार्च का काफिला सोहराब गोड से हैदराबाद की जानिब रवा दवा है। उधर कोयटा में भी JUI फे के काफिले रवानगी के लिए तैयार हैं। हैदराबाद से वकास बाकिर और कोयटा से फजल तवाब हमारे साथ ही मौजूद हैं, तो इन दोनों से बात करते हैं। सबसे पहले हैदराबाद जाते हैं। वकास, ये बताएगा कि कब तक हैदराबाद आमद मुतवक्के है और क्या यहाँ से भी कुछ ऐसे काफिले हैं जो मरकजी काफिले को ज्वाइन करेंगे? जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम की सियासी तारीख का वो दिन पहुँचा है जब जमीयत उलमा इस्लाम को अपनी पहली मरतबा शुरू की गई मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक के लिए भरपूर अवामी कुव्वत का मुजाहरा करना है। हम इस वक्त मौजूद हैं हैदराबाद के करीब हटड़ी बाईपास पर, जहां ठट्टा, बदीन, सजावल, उमरकोट और हैदराबाद और मीरपुखार डिवीज़न से मुल्का अजला के काफिले यहाँ से मरकजी जो आज़ादी मार्च के जुलूस में शामिल होंगे। अब तक जो यहाँ पर मुख्तलिफ अजला के कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है। ताहम जैसा कि जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से कहा जा रहा था, उतनी बड़ी तादाद में काफिले गो के अभी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान की क़यादत में JUI के आज़ादी मार्च का काफिला करीबन 4 बजे के बाद हटड़ी बाईपास पर हैदराबाद पर पहुंचेगा और कुछ देर यहां पर क़याम करेगा। तवक्को की जा रही है कि मौलाना फजल रहमान हटड़ी बाईपास पर मौजूद इस्तकबाल करने वाले कारकुनान और मरकजी काफिले में शामिल होने वाले कारकुनान से खिताब भी करेंगे। उसके बाद हटड़ी बाईपास से होता हुआ ये काफिला बरास्ता मटियारी, हलानी और नौशर फरोज से होता हुआ सकरन बाईपास पर कुछ देर क़याम करेगा और फिर ये सकरन बाईपास के बाद रात गए सक्खर पहुँचेगा। जमीयत उलमा इस्लाम के आज़ादी मार्च का जो काफिला कराची से शुरू हुआ है उसका रूट इसी तरह मुरतब किया गया है कि सुपर हाईवे से मुल्का तमाम अजला के काफिले सकरन बाईपास, खैरपुर और सक्कर बाईपास पर जमा होंगे।
जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान यहाँ पर पहुँचना शुरू हुए हैं। कुछ जो कारकुनान काफिले में शामिल हो रहे हैं वो अपनी गाड़ियों पर आए हैं, अपना ज़ादेरात साथ लाए हैं, और जो काफिले के सिर्फ इस्तकबाल के लिए आए हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो वकास, इसका मतलब ये है कि ये तकरीबन इंटीरियर सिंध के जितने भी काफिले हैं छोटे छोटे वो इस मरकजी काफिले से मिलेंगे, यहाँ पर पड़ाव होगा वहाँ से वो मिलेंगे। आप साथ ही रहेगा, कोयटा का रुख करते हैं। फजल तवाब ये बताएगा, चूँकि जिस तरह से खबर ये भी है कि वहाँ से भी काफिले तैयार हो गए, अब कौन से मकाम पर ये मरकजी काफिले से ज्वाइन करेंगे और कितनी तादाद है जो सुबह बलूचिस्तान से इस बड़े काफिले के साथ मिलने वाले हैं? देखिए, बलूचिस्तान में भी सूरत हाल जो है वो सिंध से मुख्तलिफ नहीं है। अंदरूनी बलूचिस्तान से आने वाले काफिले जो है वो कोयटा पहुंच चुके हैं, और अब से कुछ लम्हे पहले ही कोयटा कुचलाख बाज़ार से जो है जमीयत उलमा इस्लाम का जो काफिला है वो अब रवाना हो चुका है, जो बरास्ता है लोरलाई, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्लाह से होता हुआ डेरा गाजी खान और पंजाब में जो है दाखिल होगा। जो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ साथ जो दीगर सियासी जमातें हैं, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत भी हम देख रहे हैं कि इस काफिले में शरीक है। बड़ी तादाद में जो कारकुनान है जमीयत उलमा इस्लाम के वो इस काफिले में शरीक है, चूँकि बलूचिस्तान के जो ख़ास तौर पर किला सैफुल्लाह, लोरलाई, संजावी, पशीन में वह यहाँ पर जमीयत का और ज़्यादा है, और ये कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो काफिले हैं वो इस कोयटा से रवाना होने वाला जो काफिला है इसके साथ शरीक होगा, और पंजाब में जो है 31 अक्टूबर में की सुबह जो है वहाँ पर दाखिल होगा। साथ ही साथ अगर खाने पीने की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो खाने पीने के भी खसूसी इंतजामात किए गए हैं। हमने जब जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं से बात की तो उनका यही कहना था कि 10 दिन का राशन जो है वो हम अपने साथ लाए हैं, जिसमें खुश्क मेवा और दीगर जो है अशिया खुर्दनोश शामिल है। जी सही, तो 10 दिन का सामान भी साथ ही लाए हैं। बहुत शुक्रिया आपका फजल तवाब और वकास बाकिर, आप दोनों का। तो काफिला तो रवाद हुआ है, लेकिन ऐसे में सवाल ये जन्म लेता है कि क्या मौलाना फजल रहमान को बनाने की कोशिशें भी हो रही हैं या हो चुकी हैं? सऊदी सफीर के चौधरी शुजात हुसैन की घर आमद हुई, हुकूमती मुज़ाकराती टीम भी मौजूद है। तर्जमान मुस्लिम लीग काफ के मुताबिक सऊदी सफीर और हुकूमती मुज़ाकराती टीम को ज़हराने पर मदऊ किया गया। इसी पर बात करते हैं, फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम, चूँकि ज़हराने पर मदऊ किया गया, लेकिन कोई मकसद भी यकीनी तौर पर होगा, और क्या सऊदी सफीर एक मावन का किरदार निभा सकते हैं जो दोनों की सुलह करा सकें, मामलात को सेटल करा सकें? देखिए, ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग मुलाकात हुई है। अब से कुछ देर पहले चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर ये हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के कुछ जो अहम अरकान है, बिलखुसूस चेयरमैन सैनिक सादिक संजरानी और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह परवेज खटक इस जगह उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात थे। तो इसी दौरान जो सऊदी सफीर हैं पाकिस्तान में तैनात, वो भी उनकी रिहाइशगाह पहुंचे हैं, और यहाँ पर हुकूमती मुज़ाकराती टीम का भी होना एक सवाल निशान तो है ही है। इस हवाले से हमने बात की क्या मौलाना फजल रहमान को बनाने की कोशिशें की गई हैं, तो तर्जमान मुस्लिम लीग काफ कहना था कि उनको सिर्फ ज़हराने पर ही मदऊ किया गया था, अलबत्ता इसकी कोशिशें जो है वो नहीं की गई, जबकि चौधरी शुजात हुसैन की अयादत भी की गई जो सऊदी सफीर है उनकी जानिब से, और सियासी सूरत हाल पर भी यकीनन डिस्कशन हुई है, और जो सियासी हल्के हैं वो इस मुलाकात को अहम करार दे रहे हैं कि सऊदी अरब माजी में भी कि पाकिस्तान की इस तरह की कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन होती है उसमें किरदार अदा करते हैं, और अब जो मौलाना फजल रहमान का आज़ादी मार्च 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में दाखिल होगा, उस हवाले से ये अहम मुलाकात समझी जा रही है। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम अख्तर। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। ब्रेक के बाद खुशामदीद बात करेंगे कुछ मौसम की, तो आपको बताएं कि बहर अरब में बनने वाला तूफान क्यार मजीद ताकतवर होकर सुपर साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर गया है। तूफान कराची के जनूब में साहिल से 860 किलोमीटर के फासले पर है। तूफान की वजह से कराची और मकरान समेत कुछ इलाकों में 28 से 30 अक्टूबर के दरमियान हल्की बारिश का इम्कान है। कराची से सबानूर की रिपोर्ट देखिए। तूफान के ज़ेर असर कराची समेत सिंध और मकरान के मुख्तलिफ इलाकों में 28 से 30 अक्टूबर के दरमियान आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को गहरे समंदर में न जाने की हिदायत की है। कैमरामैन इस्माइल अख्तर के साथ सबानूर, 92 न्यूज़ कराची। यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।